شادی کے بعد ہر رات اپنی پہلی بیوی کے سامنے اپنی دوسری بیوی کے قریب جاتا۔ میری پہلی بیوی کالی تھی۔ جب میں اسے طلاق دینے لگا تو وہ میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ بھلے دوسری شادی کر لیں مگر مجھے اسی گھر میں رہنے دے، میرا باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے ترس کھا کر مان گیا، پھر ایک بہت خوبصورت لڑکی سے دوسری شادی کی۔ میں ہر رات خوبصورت بیوی کے پاس اس کے سامنے قریب جاتا کیونکہ میرا نام محسن ہے اور میری ماں کافی عرصے سے بیمار تھی۔ میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا کیونکہ میری ماں کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا نے میری ماں کو جوانی میں ہی طلاق دے دی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے لیے ہی انہوں نے سب کچھ کیا۔ اب وہ بیمار تھی اور بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ان کی حالت روز بے روز خراب ہو رہی تھی۔ وہ سانس لینے میں دقت محسوس کر رہی تھی اور کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتی رہتی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا کہ کیسے میری ماں میری زندگی کا سب کچھ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے کی کوشش کرتی اور پھر کانپتی آواز میں بولتی کہ بیٹا ایک بات ہے، بس ایک خواہش ہے تم سے، سائرہ سے شادی کر لو۔ سائرہ میری بہن کی یتیم بیٹی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو۔ میں نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ سائرہ وہ جس کے بارے میں نے کبھی زیادہ کچھ سنا نہیں تھا اور وہ جو بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی، رنگ اور روپ میں کسی بھی طرح اچھی نہیں تھی اور اس کا رنگ بھی کالا تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں آخری امید تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی کہ ماں میں نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی طرف جھک کر بیٹھا اور کہا ماں میں نہیں چاہتا۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں درد اور عاجزی کی ایک تصویر تھی اور وہ لرز کر بولی کہ محسن، میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تجھے پالنے کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی، تم نے میری زندگی میں خوشی دیکھنا کبھی نہیں چاہا، میں نے تیرے لیے دن رات محنت کی اور تجھے سب کچھ دیا، ایک بات نہیں مان سکتا کیا؟ میں نے اتنا حق نہیں دیا کہ میری خواہش پوری ہو جائے؟ میں نے سر ہلا کر کہا ماں لیکن دل نہیں مان رہا۔ میری ماں نے ہاتھ میری طرف بڑھایا اور تھپ تھپاتے ہوئے کہا بیٹا میں جانتی ہوں کہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ میری آخری خواہش ہے، تم نے میری بات نہیں مانی تو میرے جانے کے بعد تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ میں پریشان ہو گیا، دل میں گھبراہٹ تھی۔ میں گھر سے باہر نکل کر دوست کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا یار کر لے شادی، ہو سکتا ہے لڑکی اچھی ہو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا جب آنکھوں کو نہ اچھی لگے تو دل کو کیسے اچھی لگے گی؟ اس نے کہا تم مرد ہو، اگر مان نہ سکو تو بعد میں دوسری شادی کر لینا، پہلی شادی کر لو اور جب تمہاری ماں دنیا سے چلی جائے گی تو دل صاف ہو جائے گا۔ مجھے مشورہ اچھا لگا۔ میں نے واپس گھر جا کر ماں کے پاس بیٹھا اور کہا ماں میں تیار ہوں میں سائرہ سے شادی کرنے کے لیے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کی ایک جھلک آئی اور مسکرا دی۔ ہم نے گھر میں سادگی سے نکاح کروا دیا۔ سائرہ دلہن بن کر بھی بالکل خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی رنگت نہیں تھی، کپڑوں کا پہناوا بھی سادہ سا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں بنایا۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں ماں کی وجہ سے پریشان ہوں اور اسے میں کچھ نہ بولنے دیا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھی رہی، آنکھیں نیچی کی ہوئی تھی۔ وہ بھی میری ماں کے لیے کافی پریشان تھی کیونکہ میری ماں اس کی خالہ تھی اور وہ میری ماں سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ ہمیشہ سے ہی میری ماں کی لاڈلی رہی تھی۔ کیا میری ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے خوبصورت بیٹے کے ساتھ ایک کالی سی لڑکی کی شادی کروا رہی ہیں؟ بس ماں ہے، اس لڑکی کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس کو زیادہ اہمیت دی، میرے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب میری ماں بیمار تھی تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا ماں آپ نے شادی تو کروا دی میری سائرہ کے ساتھ لیکن اس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ تو نہیں ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا خوبصورتی کے پیچھے کبھی نہ جانا، عورت کی خوبصورتی 2-4 سال کی مہمان ہوتی ہے، 1-2 بچے پیدا ہوتے ہیں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کا حسن سلوک دیکھنا، اس کی شرافت، اس کی وفا دیکھنا، وہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں جوان لڑکا ہوں اور مرد تو خوبصورتی دیکھتا ہے نا۔ ماں نے کہا کہ یہی تو مرد غلطی کرتا ہے، اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو زیادہ دیر چلتی نہیں اور کسی انسان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ مجھے ماں کی بات سمجھ نہ آئی جبکہ وہ بات مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی، وہ بڑے تجربے کی بات تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سائرہ تجھے پسند نہیں ہے؟ اب تو تیری شادی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی
کی ہے। میں نے کہا کہ نہیں اماں، ناانصافی نہیں کی ہے، وہ میری بیوی ہے، میں اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ماں کو تسلی دے دی اور اچھا ہی کیا، کیونکہ ماں کی زندگی کی وہ آخری رات تھی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ہماری شادی کو بھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے تو 2 ہفتے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ماں اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں رہی، لیکن سائرہ نے ان کی خدمت اس طرح کی کہ وہ پورے 2 ہفتے نکل گئے۔ وہ دن اور رات ماں کے پاس بیٹھی رہتی تھی، کبھی ان کے پاؤں دباتی، کبھی پانی پلاتی، کبھی دوائی وقت پر دیتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی نیند اور آرام سب کچھ بھول گئی تھی۔ ماں کے چہرے پر بھی ان دنوں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ جس ذمہ داری کے لیے وہ پریشان تھی وہ اب پوری ہو گئی ہو۔ ماں کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا، دل میں خلا سا پیدا ہو گیا۔ گھر اچانک خالی خالی لگنے لگا۔ وہ کمرہ جہاں ماں لیٹی رہتی تھی وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کانوں میں گونجتی تھی۔ میں نے ماں کو خود قبرستان تک لے جا کر دفن کیا اور واپس آ کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ ماں کے جانے کے بعد مجھے احساس بھی تھا کہ اب گھر میں میری حکومت چلنے والی ہے، اب جو فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا۔ ماں کے جانے کے آج 2 مہینے پورے ہونے کو تھے۔ اس پورے عرصے میں نے سائرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا۔ وہ بس ایک بیوی کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی، ایک ایسی بیوی جس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی ہی گھر صاف کرتی، میرے لیے ناشتہ بناتی، میرے کپڑے دھوتی اور استری کرتی۔ جب گھر میں ماں کے افسوس کے لیے لوگ آتے تو وہ سب کا خیال رکھتی، پانی دینا، چائے بنانا، سب کچھ خود کرتی۔ میں اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر سب دیکھتا رہتا۔ اس نے گھر کو واقعی بدل کر رکھ دیا۔ جو گھر پہلے بوجھل اور اداس لگتا تھا وہ اب صاف ستھرا اور منجم نظر آتا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں بس یہ سوچتا رہتا کہ اب میں کیا کروں اور اس رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کی ماں بھی بار بار مجھے یہی بات کہتی تھی کہ اب میری سائرہ کے ساتھ تم ہی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خود بھی بیمار رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں بھی ایک دن اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں گی اور اس کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تو یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے میرے گلے پڑ جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس سے پہلے مجھے سائرہ سے جان چھڑانی ہوگی۔ میں اس سوچ میں ڈوبا رہتا اور سائرہ اپنے کام میں لگی رہتی۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے۔ میں سائرہ کے پاس گیا، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی اور سوچ رہا تھا کہ بات کیسے کروں۔ اسے دیکھ کر دل کچھ سکون سا بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، آنکھوں میں غم اور صبر دونوں کی جھلک تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سر ہلا کر بولی، مجھے پتا ہے شاید آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس رشتے کو شروع کرنے کی۔ ابھی ابھی خالہ اس دنیا سے گئی ہیں، ابھی بھی ہمارا غم تازہ ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر دکھ اور عاجزی کا امتزاج تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، ظاہر ہے میں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی، کیونکہ تم جیسی کالی عورت ہی کر کیا سکتی ہو؟ اپنے شوہر کی بات نہیں مانو گی تو کیا کرو گی؟ تمہارے پاس حسن تو نہیں ہے اس لیے تم دعوے داری کر سکتی ہو۔ میں نے سب کچھ منہ پر تو نہیں بولا، بس دل میں سوچا۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ کہا کہ میں نے ابھی تک تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، تم ابھی بھی کنواری ہو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا، اس لیے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ میری ماں کی آخری فیصلہ تھا، ضد تھی، ان کی آخری خواہش تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کی۔ وہ سن کر حیران ہو گئی اور آنکھیں بڑی کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آگے کہا، اس لیے میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اور میں تمہیں واقعی چھوڑنے والا ہوں، اور یہ سب کچھ آرام سے ہو تو بہتر ہے۔ جو حق مہر میں نے لکھوایا تھا وہ بھی دوں گا، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں ہر مہینے کچھ پیسے بھی دوں گا، لیکن تم میری زندگی سے چلی جاؤ، کیونکہ میں نے ایک اور لڑکی کو دیکھ لیا ہے جس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے سب باتیں سنی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت تھوڑی کرتی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، اب اس بات سے ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے مجھ سے دوبارہ تو کوئی نکاح نہیں کرے گا،
कोई शादी नहीं करेगा और मुझ पर दाग भी लग जाएगा। लोगों को तो नहीं पता कि आपने मेरे साथ कोई ताल्लुक बनाया नहीं। लोग तो ये समझेंगे कि शादी के 4 महीने भी नहीं हुए थे कि तलाक हो गई है। मैंने दिल में सख्ती के साथ कहा, देखो मैं अपनी ज़िंदगी में मुसीबत नहीं चाहता हूँ, और अगर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तो दूसरी लड़की से शादी कैसे करूँगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप तो मर्द हैं, आप तो 4 शादियाँ भी कर सकते हैं। आप कर ले उस लड़की से शादी जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तलाक ना दें, मुझे इसी घर में रहने दें। मैंने दिल में गौर किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, देखो इस घर में रहोगी तो मसला होगा, तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और तुम्हें नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। वो आंखें भर कर बोली, मैं रहूँगी, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगी, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस मुझे तलाक ना दे। तलाक किसी भी औरत का बुरा ख्वाब होता है। वो मिन्नतें और समाजतें करने लगी, मेरे पैरों में बैठ गई। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो ठीक है, उसकी बात मान लेता हूँ, वैसे भी मुझे घर के कामों के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता बता दिया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म के रिश्ते या ताल्लुक की उम्मीद भी ना रखना। उसने सर हिलाकर कहा, ऐसा ही होगा, और आंखों में एक मिक्स जज्बात के साथ खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने अरुज नाम की लड़की से शादी कर ली और मैंने उसे कोई झूठ नहीं बोला, उसे सब कुछ पहले दिन ही बता दिया, सायरा के बारे में और इस रिश्ते की हकीकत के बारे में भी। शुरू में अरुज को ये सब सुनकर कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि वह खुश हो गई। वो हंसते हुए कहती थी कि अच्छा है घर में एक नौकरानी मौजूद हो जो काम करेगी, चाहे वो तुम्हारी पहली बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन है तो नौकरानियों जैसी ही। उसके लहजे में हकारत साफ झलकती थी और मैं खामोशी से सुनता रहा। जब अरुज मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं वाकई बहुत खुश हो गया था। वो बहुत खूबसूरत थी, उसका रंग सफ़ेद था, चेहरा निखरा हुआ था, बाल नरम और आंखें चमकती हुई थी। उसके पास बैठकर मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी मुझ पर मेहरबानी कर दी हो। मैं उसे देखकर खुश हो जाता था। खूबसूरत औरत की मौजूदगी ही मर्द के दिल को बहला देती है, और मैं भी कोई अलग नहीं था, मैं हुस्न परस्त था। मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं थी और उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदल गई थी। घर में कह थे, हंसी थी और मेरे दिल में एक अजीब सी तस्कीन थी। मैं खुद को कामयाब और मुतमईन समझने लगा था। सायरा सबके बीच खामोशी से अपने काम में लगी रहती थी। वो अरुज के सामने नज़र झुकाकर बात करती और हर हुक्म को मान लेती थी, मगर एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका रंग पीला पड़ गया। वह काम करते करते बैठ गई। मैंने देखा तो उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाने का फ़ैसला किया। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कहा कि कमज़ोरी है। जब मैं वापस आया तो अरुज का चेहरा बदला हुआ था, उसकी आंखों में नाराज़गी थी। अरुज ने तेज़ लहजे में कहा कि तुम इसे अस्पताल क्यों ले गए। मैंने कहा उसकी तबीयत खराब थी, अस्पताल ही तो ले जाना था, फिर कौन ले जाता इसको अस्पताल। अरुज ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी बीवी है, ये किसी न किसी दिन तुम्हारे दिल में उसके लिए नरम गोशा बना ले। तुम इसको यहाँ से निकाल दो, इसको तलाक दे दो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। और उसका चेहरा और सख्त हो गया। वह बोली कि ये क्या बात हुई, बस इसको तलाक देकर दफ़ा करो। मैंने कहा कि देखो, अगर वह चाहती तो मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह कोने में पड़ी रहती है, किसी को क्या कह रही है। मेरी बीवी तो है, लेकिन सिर्फ नाम की बीवी है। और उसने बेचैनी से कहा कि मेरे दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है, मैं डरती हूँ कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ना आ जाए। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़ुबान से तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसे ज़बान दी है। और उसने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता आवाज़ में कहा, फिर ऐसी हरकतें करो कि वे खुद ही तुमसे तलाक ले ले। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। फिर मैंने कहा, हाँ ये हो सकता है, अगर हम उसे थोड़ा तंग करेंगे तो वह खुद ही चली जाएगी। मैंने दिल में हिसाब लगाया कि वो कब तक इस माहौल को बर्दाश्त करेगी। जब एक ही घर में ज़िल्लत, खामोशी और बेकदरी मिलेगी तो उसका दिल एक दिन टूट ही जाएगा। हम दोनों ने बैठकर पूरा प्लान बना लिया। हमने तय किया कि उसे इतना तंग करेंगे कि वह खुद ही कहेगी कि मुझे तलाक दे दो। इस तरह ना हमें इल्ज़ाम आएगा और ना ही हमें अपने वादे को तोड़ना पड़ेगा, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और मैं इस मंसूबे के साथ खुद को मुतमईन समझने लगा। मैंने अरुज को ये भी कहा कि तुम उसको ज़्यादा तंग करना, क्योंकि तुम उसकी सौतन हो, तुम्हारी बात उसे ज़्यादा बुरी लगेगी। अरुज ने कहा कि ठीक है। हमने सायरा पर हर तरह का जुल्म करना शुरू कर दिया।
वो दिन जो उसके लिए पहले ही खामोश थे अब वे और भारी हो गए। हम उसे पूरे घर का काम करवाते थे, ऐसा काम भी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। सुबह होते ही उसे उठा दिया जाता था, रात गए उसे सोने नहीं दिया जाता था। अरुज उस पर बिला वजह हुक्म चलाती थी, कभी आवाज़ ऊंची करके डांट देती, कभी सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती। मैं भी जब दिल में गुस्सा होता वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देता था, कभी बातों से कभी अपने रवैये से। मगर सायरा हर बात चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही थी। उसके चेहरे पर न चीख होती, न शिकायत, न आंखों में सवाल। वह बस सिर झुकाकर काम में लगी रहती। मैं अक्सर उसको देखता कि वह बर्तन धोते हुए रुक जाती और गहरी सांस लेकर फिर से हाथ चला देती, या झाड़ू देते हुए उसकी कमर सीधी होकर फिर झुक जाती, मगर उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकलता था। अरुज बार बार कहती थी कि मैं उसे जानबूझकर बड़ी लड़ाई करूंगी, कि मेरे साथ झगड़ा कर रही थी ताकि बात बढ़े, मगर वह जवाब भी नहीं देती, ना गुस्सा, ना एहतजाज, ना आंसू। अरुज गुस्से में आकर कहती थी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, या तो इसे परवाह ही नहीं है, ये बहुत ढीठ है, समझ नहीं आता इतनी जिल्लत कैसे बर्दाश्त कर लेती है। मैं भी उसकी खामोशी से उलझने लगा था। मुझे लगता था कि कोई इंसान इतना सब्र कैसे कर सकता है। हर दिन उसके लिए नया बोझ लेकर आता था और वह हर बोझ उठा लेती थी जैसे उसके अंदर कोई आवाज़ मर चुकी हो। मैंने एक दिन ये सब देखते हुए दिल में सोचा कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, भूख, थकान, जिल्लत, मगर एक चीज़ है जो बर्दाश्त नहीं करती, वो ये है कि उसका शौहर किसी और औरत के साथ हो, मगर ये भी बर्दाश्त कर लेती है। ये सोचकर मेरे दिमाग में एक नया ख्याल आया। मैंने अरुज से कहा हमें कुछ और सोचना होगा, क्योंकि ये रास्ता काम नहीं कर रहा। और सायरा वैसे ही खामोश खड़ी थी जैसे सबका उससे कोई ताल्लुक ही ना हो। मेरे दिमाग में बहुत ही गंदा जलील किस्म का ख्याल आ गया। जब रात हुई तो मैं अरुज के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया। उसे हाथ से पकड़ के घुमा देता, गले से लगाता और ये सब कुछ सायरा के सामने करता, लेकिन वो ये सब भी बर्दाश्त करने लगी। फिर एक दिन मैंने उस कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम हमारे कमरे में सोया करो, बाहर गर्मी होती है, इधर एसी लगा हुआ है। और वह नीचे बिस्तर पर सो जाती, हम दोनों बेड पर होते और बेड पर हम वो सारे काम करते जो मियाँ बीवी करते हैं, और वह सब कुछ सुनती रहती, बर्दाश्त करती रहती। उसके धीरे धीरे रोने की आवाज़ें भी आती थी, लेकिन फिर भी उसका सब्र जवाब नहीं दे रहा था। मैं और अरुज हैरान थे, लेकिन हमें पता था कि उसका सब्र एक दिन ज़रूर जवाब देगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरुज बहुत खूबसूरत थी, मैं उसकी खूबसूरती पर मरता था और वो मेरी खूबसूरती पर मरती थी। हम लोग इस तरह इन मामलात में पड़े हुए थे कि सायरा को इतना तंग किया जाए कि वह खुद ही चली जाए, और इस दौरान हमें बहुत से फ़ायदे भी मिल रहे थे। हर दिन हम उससे घर के काम करवाते थे, ऐसा काम जो कभी ज़रूरी नहीं थे। कभी बर्तन धोने के लिए उसे देर तक खड़ा रखा जाता, कभी सोफ़ा साफ़ करवाने के लिए उसे कोने में खड़ा रखा जाता। उसके अलावा कपड़े धोने और इस्त्री करने से सारे काम उस पर डाले जाते और उसको घर के काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। वो बस बैठी रहती और जैसे जैसे सायरा काम करती वैसे वैसे घर मुकम्मल संभलता जाता। सायरा का हाथ वाकई माहिर था, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। हर बार उसका जायका इतना बेहतरीन होता कि इंसान सोचता रह जाता कि ये कौन सा जादू है जिससे आम सा गोश्त इतना लजीज बन जाता है। कपड़े धोने में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था, हर चीज़ को वह तरतीब से रखती थी। बर्तन और कपड़े हमेशा दुरुस्त जगह पर होते थे, हर कमरा उसके हाथ से साफ और मुंजिम नज़र आता था। एक दिन आधी रात को मुझे अचानक भूख लग गई। सायरा तो सो रही थी और उस जाग गई। हम दोनों ने सोचा कि गोश्त पकाया जाए और मैंने गोश्त कुकर में डाल दिया। अरुज ने कमरे में बैठने का फ़ैसला किया। मैंने उससे कहा कि आज मैं तुम्हें ऐसा नरम और लजीज गोश्त बनाकर खिलाऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। वो कमरे में बैठी और मैं किचन में कुकर के पास खड़ा हुआ, मगर शायद मुझे कुकर चलाने का सही तजुर्बा नहीं था या कुछ और वजह थी कि अचानक कुकर फट गया और गोश्त के साथ भाप भी बाहर निकल गई। मैं उस धुएं में झुलस गया और फ़ौरन चीख पड़ा। अरुज और सायरा दोनों फ़ौरन किचन में दौड़ कर आई। मैं बहुत ज़्यादा जल गया था, मेरा चेहरा, गर्दन और एक बाजू जल गए थे। वहाँ एक गहरा निशान रह गया था और जिल्द जलकर ख़राब हो गई थी।
मैं फ़ौरन अस्पताल के लिए ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने हालत देखी और कहा ये खुशकिस्मती है कि ज़िंदगी बच गई है, लेकिन जिल्द पर गहरे निशान और जलने की वजह से ज़िंदगी भर निशान रह जाएंगे। मैं बर्न वार्ड में दाखिल हुआ और वहाँ 1 महीना गुजारा। इस पूरे अरसे में मेरी खिदमत ज़्यादातर सायरा ही कर रही थी। वह दिन रात मेरे पास रहती थी, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। पानी पिलाना, दवाई देना, बाथरूम में ले जाना, हर काम वो करती थी। अरुज़ भी वहाँ मौजूद रहती थी, मगर वह ज़्यादातर सोई रहती या कम से कम मदद करती। मैं उसे परेशान नहीं करता था, वह रात को जागते हुए कोई आवाज़ भी नहीं देता था। लेकिन अरुज़ ने मुझसे दूरी शुरू कर दी। वह मुझसे बात कम करती थी, खाने पीने में अपना हिस्सा अलग रखती थी और मेरे करीब बैठने से गुरेज करती थी। एक दिन जब मैं घर आया तो उसने फ़ौरन कहा कि इतने निशान तुम्हारे चेहरे से कैसे जाएंगे। मैं खुद परेशान था, लेकिन ये सुनकर दिल और भी धक सा रह गया। वो बोली प्लास्टिक सर्जरी तो हम नहीं करवा सकते, इतने तो पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि जो होना था हो गया, कम से कम तुम मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अरुज़ के रवैये में बदलाव आ गया। अब वह मुझसे बात भी कम करने लगी थी और जैसे मेरे हालात की परवाह नहीं करती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम एक नॉर्मल से आदमी हो, 70 से 80 हज़ार कमाने वाले 2.5 मरले के मकान के मालिक हो। एक तुम्हारा हुस्न ही था जिसकी वजह से मैं तुम पर मर मिटी थी, और अब वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे देखा और कहा कि क्या मतलब क्या करूं? तुम बीवी हो मेरी, तो तुम्हारा काम है कि हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दो। अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो क्या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देता? उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि हाँ, तुम निकाल देते। मैंने पूछा क्यों? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? वो चुप हो गई और कुछ ना बोली। मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या चाहती है। मैं पहले ही डिप्रेशन में था, हादसे के बाद मेरा चेहरा जल गया था और ज़िंदगी के लिए खतरा भी पैदा हुआ था। मैं खुद परेशान था, लेकिन मेरे दिल में और भी उलझनें आ गई थी कि अरुज़ मेरे साथ अब कैसे पेश आ रही है और मेरे साथ कितनी सख्ती बरत रही है। सायरा वो सब कुछ देखकर खामोशी से अपनी जगह पर मौजूद थी। वो सब काम करती थी जिसका मुझे या उसको एहसास भी नहीं होता। वो हर दवा का वक्त याद रखती थी और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। रात को जागना, बाथरूम ले जाना, पानी देना, वो सब कुछ करती थी और उसके बरक्स वो हर वक्त मौजूद रहती थी। मैंने कई बार उसे देखा कि वे थकने के बावजूद भी काम कर रही थी। सायरा की ये खामोशी और बर्दाश्त मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सुकून भी देती। मैंने महसूस किया कि वो मेरी ज़िंदगी में एक अजीब किस्म का सहारा बन चुकी है और उसका रवैया मुझे परेशान करता रहा। लेकिन सायरा की मौजूदगी से दिल में कम से कम एक चीज़ में सुकून था। मैं खुद तकलीफ़ में था, लेकिन सायरा की मेहनत और देखभाल की वजह से मेरी ज़िंदगी कुछ हद तक आसान हो गई थी। वो रातों में जाकर पानी देती, दवाई देती और मेरे साथ वक्त गुजारती, और मैं उसकी इस खामोश मोहब्बत और खिदमत को देखकर दिल ही दिल में उसके लिए शुक्रिया महसूस करता रहा। इसके बावजूद कि मैंने उसे कभी उसका हक नहीं दिया और उसके रवैये ने मुझे मुसलसल उलझा रखा था। सायरा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और मेरे साथ हर लम्हा सब्र से पेश आ रही थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। हर सुबह एक जैसी होती थी और शाम भी बिल्कुल वैसी सुकून या तनाव लाती थी। और उसने कमरा भी बदल लिया था। वो कहती थी कि मैं रात को उठी तो अंधेरे में तुम्हारा चेहरा मुझे खौफनाक लग रहा है। मैं डर गई थी। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी ये बातें मेरे दिल पर कितने ज़ख्म कर रही थी और किस तरह मेरे अंदर के जज्बात बिखर रहे थे। मैंने उस दिन भी सब्र किया, लेकिन दिल के अंदर एक खला बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह जब मैं उठा तो अरुज़ दिख नहीं रही थी। मैंने सायरा से पूछा कि वो कहाँ गई है, तो सायरा ने सर झुकाकर कहा कि वे सुबह सुबह अपना बैग उठाकर कहीं जा रही थी। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या मालूम है वो कहाँ जा रही थी, तो सायरा ने मुझे डांट दिया और कहा कि तुम्हारा काम नहीं। मैंने दिल में कुछ सोचा, लेकिन बाहर कुछ नहीं निकाला। थोड़ी देर के बाद अरुज़ का फ़ोन आया। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है, तुम्हारी खूबसूरती ही थी वो भी चली गई, तो तुम मेहरबानी करना कि मेरी तलाक भेज देना ताकि मैं किसी और से शादी कर सकूँ। ये तुम्हारी तुमसे आखिरी इल्तिजा है। ना मैं कुछ लेकर जा रही हूँ, ना कुछ देकर जा रही हूँ, बस मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो। ये सब कुछ इतना अजीब और साफ लग रहा था कि मेरी आंखें नम हो गई। मैंने फ़ोन बंद किया और दिल ही दिल में सोचा कि ये सब कुछ मेरे किए ही की सज़ा है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने उसके लिए सायरा को
छोड़ा था और सायरा के होते उससे शादी की थी। मैंने सायरा को कभी उसका हक नहीं दिया, सायरा को टॉर्चर किया और उसने मुझे छोड़कर चले जाना ही मुनासिब समझा कि अब मैं खूबसूरत नहीं रहा। मैंने ये सब बातें सायरा को नहीं बताई। सायरा खामोश रही और वही सब काम करती रही। वो मुझसे नाराज़ नहीं हुई, ना किसी किस्म की शिकायत की। मैंने अरुस को तलाक लिखकर भेज दी और उसे आज़ाद कर दिया। मैंने उसे कभी वापस बुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिल में एहसास था कि ये सब दुरुस्त फैसला था। अरुस चली गई और अब घर में सुकून आ गया। सायरा ने भी हर काम में मेरा साथ दिया। वो दिन रात मेरा ख्याल में लगी रहती, रातों को जागती, पानी देती, दवाई देती और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। कभी शिकायत नहीं की, कभी आंखें नहीं चुराई कि थकान हो गई है। वो सब कुछ सब्र के साथ करती रही। मैं उसकी कुर्बत और खिदमत को देखकर खुद को भी निदामत में महसूस करता रहा कि मैं इतने अच्छे इंसान को नज़रअंदाज किया और उसकी खिदमत को हकीर समझा। एक दिन मैंने सायरा से कहा कि तुम मेरे कमरे में सो जाया करो, ये तुम्हारा भी कमरा है, तुम मेरी बीवी हो। सायरा हैरान हो गई। उसने बिल्कुल ही नहीं कहा कि अच्छा रुस चली गई, अब याद आ गई। बस उसने सिर हिला दिया। मैंने कहा ज़मीन पर नहीं, इधर मेरे पास आकर सो जाओ। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान हुई, लेकिन खामोशी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पास आकर बिल्कुल सिमट कर सो गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो थोड़ा सा घबरा गई। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मैंने इतने अच्छे इंसान को नज़रअंदाज किया और उसकी खिदमत को हकीर समझा। सायरा ने मुझे आहिस्ता से कहा, भूल जाएं जो कुछ भी हुआ है, मैं हूँ ना आपके साथ। उसने मुझे ये भी कहा कि तुम मेरा ये जला हुआ चेहरा सारी ज़िंदगी देखोगी। तो उसने कहा, चेहरा नहीं, मैं तो आपकी रूह देखूंगी। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी कि मैंने सायरा के साथ वो सलूक किया और अरुस जैसे इंसान के साथ ताल्लुक़ बना लिया जिसके पास कोई खूबी नहीं थी। सायरा लाखों की थी, करोड़ों की थी, अरबों की थी और अरुस 2 टके की भी नहीं थी। और मैंने अपने लिए सायरा को नहीं समझा और सायरा ने कभी इस बात का ताना नहीं दिया, कभी कोई शिकवा नहीं किया। अब हम दोनों आज़ाद थे। मैंने अरुस को तलाक लिखकर भेज दी और वह अपनी ज़िंदगी की तरफ चल दी। मैं और सायरा मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ थे। हम दोनों की ज़िंदगी में खुशी का माहौल था और हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। सायरा ना सिर्फ एक अच्छी होम मेकर थी, बल्कि एक बेहतरीन कुक भी थी। हर खाने का जायका ऐसा होता कि दिल खुश हो जाता। कपड़े धोने में माहिर थी। हर कपड़ा बिल्कुल साफ़ और इस्त्री किया हुआ नज़र आता था। घर में हर चीज़ तरतीब से रखी जाती थी। वो हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती थी। मेरे बर्न वार्ड के बाद भी वो मेरी हर खिदमत कर रही थी। मैं बीमार हो जाता या थक जाता, वो मेरे पास रहती। रातों को जागती, दवाई देती, पानी देती, बाथरूम ले जाती और मेरा ध्यान रखती। वो हर वक्त सब्र और तहम्मुल के साथ काम करती रही। मैंने महसूस किया कि औरत की काबिलियत और मोहब्बत ही असल में सब कुछ है और मैं वाकई खुशकिस्मत था कि सायरा मेरी ज़िंदगी में थी। मैं और सायरा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के जज्बात को समझते रहे। सायरा की खामोशी, मोहब्बत, खिदमत और वफ़ा ने मुझे ज़िंदगी का असल मतलब सिखाया। मैंने देखा कि खूबसूरती या चेहरे की कदर नहीं, बल्कि दिल की पाकज़गी और खिदमत ही सब कुछ है। हमारी ज़िंदगी मिसाली थी। हर दिन एक दूसरे के साथ गुजरता, हर रात सुकून और मोहब्बत में डूबी हुई होती। हमने एक दूसरे के लिए हर लम्हे की कदर की, हर दिन को खुशियों से गुजारा। सायरा की मेहनत, मोहब्बत और सब ने घर को जन्नत बना दिया था। हर कमरा साफ़ सुथरा, हर खाना लजीज, हर कपड़ा बिल्कुल इस्त्री किया हुआ और हर ज़रूरत वक्त पर पूरी हो जाती थी। मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सायरा जैसी औरत मौजूद है और मैंने उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि हर लम्हा उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा माना। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर खुश थे और हमारी ज़िंदगी अब ना सिर्फ पुरसकून बल्कि मोहब्बत और एहतराम से भरी हुई थी। ज़िंदगी में इंसान के सही फैसले, इखलाकी ज़िम्मेदारी की कदर कितनी अहम है। मोहसिन ने अपनी माँ की ख्वाहिश और ज़मीर के दबाव की वजह से एक ऐसे रिश्ते में कदम रखा जो उसके दिल के मुताबिक नहीं था। उसने इब्तदा में सायरा को नज़रअंदाज किया और अरुस जैसे गैर मुनासिब रिश्ते की तरफ मतवज्जा हुआ,
لیکن وقت اور حالات نے اسے سکھایا کہ اصل خوشی اور سکون کسی بیرونی حسن یا عارضی کوشش میں نہیں بلکہ دل کی نیکی، محبت، خدمت اور وفاداری میں ہے۔ سارہ نے اپنی خاموشی، صبر، تحمل اور محنت سے یہ سب ثابت کیا کہ ایک انسان کی عظمت اس کے دل اور اعمال سے جانی جاتی ہے، نہ کہ اس کے حسن یا دولت سے۔ اس نے نہ شکایت کی، نہ اعتراض کیا، بلکہ ہر وقت محسن کا خیال رکھا، اس کی خدمت کی، اسے اعتماد اور محبت کا حق ادا کیا۔ اس کے برعکس عروس کی خود غرضی اور احساس کمتری نے اسے زندگی سے الگ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آج کی خوشی یا دنیاوی خوشی میں آنے والی محبت اکثر مستقل نہیں رہتی۔ حقیقی محبت اور رشتہ وہ ہے جس پہ احترام، خدمت، اعتماد اور سمجھ بوجھ موجود ہو۔ ایک رشتہ صرف باہر کے حسن یا دولت سے نہیں چلایا جا سکتا بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر، قربانی، سچائی اس کی بنیاد ہے۔